وادی چیپرسن کو بزرگ دین کے قدمگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی سے متعلق بہت سے لوک کہانیاں اور واقعات بھی مشہور ہیں۔ ان کہانیوں میں ڈریگن لیک، کمپیر یعنی بوڑھی عورت کی کہانی اور ساتھ ہی زرین عشق کی کہانی مشہور ہیں۔ یہ کہانیاں اور واقعات اپنی جگہ، لیکن اس وادی میں موجود حضرت بابا غوندی کا مزار سے متعلق اور حضرت بابا غوندی سے متعلق چند حقائق سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں استاد عصمت اللہ مشفق اور مشہور صوفی ڈانسر وہاب کی انٹرویو کے ذریعے سے۔ اس کا نام محمد الباقر ہے۔ تو ایک امام محمد الباقر تو ہے، اس کا زیارت تو جنت البقیع میں ہے۔ اس بزرگ کا نام بھی محمد الباقر ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کہاں سے ہے؟ لیکن اس کی تربیت، تعلیم اور تبلیغ اشاعت کے متعلق ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہاں آ کر اکتوبر کے مہینے میں اس بارڈر کو کراس کر کے، بارڈر نہیں ہے، ٹراپ کو کراس کر کے، بارڈر تو آگے ہے، یہاں بیمار ہو گیا اور یہاں وفات پائی۔ تو ان کی جو امپورٹنس ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ اتنے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دفعہ یہاں پیر پنجہ کی طرف سے تو میر آفونزے کے پاس زکوٰۃ جن کے پاس لاتے تھے، ایک خلیفہ نے وہاں پیر کی طرف سے وہ سارے مال نذرات لے کے یہاں میرے گھر میں وہ شباش ہوا۔ اچھا، شباش تو فارسی ہے۔ تو وہاں میں نے اس سے پوچھا کہ اس بابا غوندی بزرگ کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی مواد نہیں ملتے ہیں کہ ہم اس پر کچھ لکھیں یا سنیں یا کسی کو سنائے۔ بالکل۔ تو اس نے کہا کہ اس کے متعلق ایک غیر مطبوع کتاب ہمارے پاس موجود ہے، دیگر بار جب میں آ جاؤں گا اس کتاب کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ بھی ماننے والے آدمی ہیں، آپ بھی بوڑھے ہیں اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، خدا جانے کہ آپ مارے یا میں، تو یہ بات ادھورا میں رہ جائے گی۔ اور یہ افغانستان دوسرا حکومت ہے، یہ پاکستان دوسرا۔ بالکل، وہ افغانستان سے آئے تھے۔ ہاں، یہ بارڈر اگر بند ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کو کچھ زبانی یاد ہے اس کتاب سے تو مجھے سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت محمد الباقر غوند میں رہتے تھے، غوند ایک گاؤں کا نام ہے یہاں واخان میں، وہاں رہتے تھے۔ اس نے میر افونزے سے ملنے کے لیے ارادہ کیا، تو اس نے وہاں سے سفر کر کے پنجہ کے مقام پر وہاں ایک بزرگ رہتا تھا، اس کا نام تھا شاقمبر آفا تھا، وہ بھی ولی تھا اور یہ محمد الباقر بھی ولی تھا۔ اس کے مہمان رہا، چند وقت اس کے پاس مہمان رہ کے اس نے اجازت لے کر تو اس طرف اس نے رخ کیا۔ تو اکتوبر کے مہینے تک اس نے یہاں اس ٹراپ کو کراس کر کے اس کو سردی لگی، یہاں آ کر وہ بیمار پڑا۔ بیمار کے دوران اس نے وصیت کیا کہ میرے پراپرٹی سے ایک یامبو، ایک بابا سکہ ہوتا ہے قدیم کا، میرے سرحانے کے ساتھ وہ یامبو رکھے، مجھے یہاں دفن کر۔ تو اتنے میں اس نے یہاں وفات پائی۔ وہ یہاں تبلیغ اشاعت کے لیے آیا تھا، لیکن وہ اسے نصیب نہیں ہوا، تبلیغ نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے ہمدرد
हम मज़हब लोग यहाँ रहते थे, तो वहाँ तक उनका रसाई नहीं हुआ, तो यहाँ से पाई, तो उसको यहाँ दफन किया गया। तो ये जो यहाँ पे लोक कहानियाँ मशहूर हैं अबाउट ये ड्रैगन और अजदहा के बारे में, उसके बारे में बताएं कि उसका कुछ लिंक था इनके साथ? नहीं, वो सब स्टोरीज हैं। वो अजदहा वाली तो बहुत पहले की बात है, अच्छा 12वीं सदी की बात है, अच्छा, ये बाद की बात है। ये कब आए थे यहाँ पर बाबा? ये इतने हमें मालूम है कि अक्टूबर के महीने में आकर यहाँ तो वफात पाई और है, कितना अर्सा लेकिन पहले तारीख आपने- तारीख अच्छा, मालूम नहीं। तारीख मालूम नहीं है। यहाँ लोग आबाद थे। राइट, तो यहाँ के बारे में जो चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे आके जो मन्नत मांगी जाए या कुछ भी मांगा जाए तो वो पूरा होता है और लोग आते हैं, तो क्या आप किस हद तक आप समझते हैं कि ये सच है या क्या है इसमें ये मसला? तो वली तो अवलिया तो खुदा रसीदा होता है, मर्दान खुदा खुदा न बاشد लेकिन से खुदा जुदा न बاشد, फारसी है। फारसी है बिल्कुल। अवलिया उल्लाह खुदा तो नहीं होते, खुदा नहीं बन सकते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वली को वसीला बनाकर खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं, ठीक है, अगर खुदा कबूल करता है तो वो सदका है, या। वो तो दुरुस्त हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी रियल स्टोरी आपको पता है किसी का, कि किसी ने कुछ मांगा हो और उनको मिला हो, या मोजिज़ा हो या वापसी? वैसे मुजिज़ा तो होते हैं, कुछ कोई एक बताएंगे, कोई जिक्र? यहाँ तो मंडरक होता ही नहीं। मेंढक? एक बताओ जी, मंडरक यहाँ होता ही नहीं। हाँ, एक औरत ने यहाँ नियत किया, अंदर नियत किया कि ऐ बाबा यहूदी, अगर आप बरहक है, वली बरहक है, तो मुझे रूह को दिखाओ। जब वो अंदर से बाहर निकले कि 2 मेंढक उसके पाँव पर उतरे। ओह, और ये कब की, ये असल कहानी? अभी की बात है, अच्छा, अभी की बात है, मुझे याद है। तब यहाँ से जाकर वो अपने घर में वफात पाई, अपनी रूह को मेंढक की सूरत में दिखाया। वाह, मेरे ख़ानदान के 10 आदमी यहाँ बर्फ तोड़े के नीचे हो गए। यहाँ एक आदमी रहता था, वो मेरे रिश्तेदार था। वो 10 आदमी यहाँ से आकर बाबागंदी के अंदर चले गए। वो हमारे रिश्तेदार ने यहाँ चाय माय का बंदोबस्त किया कि वो आ जाएंगे, तो वो It's a drone camera. तो एक्चुअली दूसरा यहाँ पे नाला कोमड़ी इसको कहते हैं, ठीक है। वो लोग गए थे वहाँ पे कुछ लोगों को रेस्क्यू करने, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। अच्छा ये 92 की बात है, अच्छा तो उसमें शामिल है, ठीक है। वो पूरे फैमिली के 10 मेम्बर्स थे। अच्छा, वो जो वहाँ गए तो अनफॉर्चुनेटली एवलांच के अंदर वो आ गए, जबकि उनकी डेथ हो गई। तो उसी दिन जिस दिन उनकी डेथ वहाँ पे हुई थी, जो बंदा यहाँ पे रहता था उसने उनको देखा, वो सारे 10 के 10 आके यहाँ वो मज़ार के अंदर घुसे और वापस नहीं आए। अब वापस नहीं आए। अच्छा, ऐसे मौजूदात हो, जो मुजाविर होता है वो देखता है। ऐसे मरने वाले लोग आते हैं यहाँ, अंदर जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। अच्छा। और जो लोग और ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा हाँ, होगा। उनको से देखा अभी की बात है। और जो लोग अंदर जाकर वापस आते हैं उनको कुछ मुजिज़ा होता है, कुछ उनकी नियत कबूल हो जाता है। ये अभी की बात है। यहाँ करगिज़ लोग रहते हैं, करगिज़ उन्होंने ये सुना कि बाबागंदी के अंदर बहुत सारे चादरें हैं, मैं जाकर उस चादर को उठाकर अपने इस्तेमाल में लाऊंगा। यहाँ आया, चादरों को सब उठाकर वापस ले गए। थोड़ी दूर जाकर तो उसके सर पीछे की तरफ हो गया। बहुत कोशिश किया लेकिन वो सर तो आगे तक अब नहीं आई। ये दिल वगैरह तो इस तरफ, उसके सर तो पीछे की तरफ। उसने तौबा किया, वही चीज़ लाकर अंदर रखा तो वो दुरुस्त हुआ। और एक खरगज वहाँ आकर निज़ा है यहाँ, जी जी, मैंने देखा। हाँ, उस निज़ा को उठा
ले जाकर कुछ काम करने के लिए, निज़ा को यहाँ से चोरी करके आगे जाकर उसको पत्थर रख कर एक दूसरे पत्थर से दे मारा, किसको चौथा करके अपने खुर्जीन में लगाओ, वो सीधा उसके आंख पर लगी, अपने आंख से माजूर होकर उसको लेकर यहाँ रखा, फिर वापस चला। वो एक कोई इसकी भी कहानी बता रहे थे कि कोई गीदड़ था जिसने के साथ चक्कर काटे कुछ बाबा गुंडी के इर्द गिर्द। फिर शाम कब तिथे जब हजरत बाबा गुंडी ने यहाँ वफात पाई, उसको यहाँ दफन किया गया। इसी तरह मज़ार तो नहीं थी, सिर्फ उसके कब्र थी। ये लोग यहाँ से फरार होकर किसी हादसे के जद में आकर तो ये खाली रह गई। लोगों को ये पता था कि हजरत बाबा गुंडी के मज़ार यहाँ है। एक कब्रिस्तान में आकर वो दुआ करते थे, उनको पता नहीं कि वो कब्र कौन सा है। यहाँ दानिश से खुरमशाह नामी एक आदमी यहाँ तो दुश्मन के लिए रखवाली करते थे, यानी पोस्ट थी यहाँ। तो वो खुरमशाह तो ऊपरदार है जो बुलंदिया इलाके जगह है, वहाँ दुश्मन को देख रहा था कि एक लंगड़ा बेटिया आ गया अंदर से, लंगड़ा था। उसने आकर एक कब्र के पर तवाफ़ की, 7 दफ़ा तवाफ़ किया, तो फिर वहाँ अपने मुंह आसमान की तरफ करके आवाज़ दिया। कब्र के अंदर से आवाज़ न आली कि ए गुर्गे की लंगे बीराव द हिंदी गुस्फंदौनी शर सिंकरो बिखो बतू हुक्म दो दी। फारसी तो नहीं जानते इसका क्या मतलब? तो फिर उसने 7 दफ़ा तवाफ़ करके चला गया। उस आदमी ने अपने एक साथी को पीछे लगाया कि आप लेकर जाकर हिंदू में पता करें। हिंद एक जगह का नाम है ना, अभी नासिराबाद कहा जाता है। वहाँ जाकर उसने पूछगछ किया कि वही लंगड़ा बेटिया जाकर वहाँ उस आदमी के जिसका नाम इस बाबा गुंडी ने लिया था, उसके बेडरूम को खा लिया। लोगों ने देखा कि वो बेटिया तो लंगड़ा है, तो इसने कहा था कि बरोज़ी पंचमी जुमारात थे, तो वही वहाँ जुमारात के दिन था। उसके बाद आकर यहाँ इस कब्र के गिर्द दीवारी की ये नमोदार हो गई। तो ये क्या माजरा था? आई मीन क्या? तो ये तो एक मुजिज़ा था ना, मीडिया ने दिखाया। अच्छा, मीडिया ने दिखाया इसको? हाँ, ये कब की बात ये है? आपके ज़मीर में नहीं आया? मैंने शायद सुना नहीं है इसके बारे में, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अभी तो सुना ना? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो सुना। तो इसी तरह इस कब्र की शनाख्त हो गई। लंगड़ा मतलब ये मुर्जा लोग एक कहानी के तौर पर बोलते हैं। तो उस बेड़िया की वजह से जो लोग यहाँ पे थे उन्होंने देखा, फिर उस कब्र की निशान देते कि ये वलीउल्लाह की मज़ार। तो जो यहाँ पे मुरीद आते हैं, जो लोग आते हैं, सारा साल लोग आते हैं, इवन बर्फबारी में भी? नहीं, सर्दी में तो नहीं आ सकते, लेकिन कोई पाबंदी तो नहीं है जी। लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ तो बहुत जी नाजरीन, अपने कीमती आरा से हमें आगाह करने या हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए lc.cheaperson@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। वस्सलाम। देखते रहिए cheaperson TV।